Friends, on behalf of My Retired Life Foundation, we extend a very hearty welcome to this very practical and a very relevant and useful topic for all of us. Today's topic, as we know, is the electrical safety in homes, and we see many incidents, many accidents all throughout life we have seen happening due to the negligence on our part in respect of the electrical safety. Sometimes they happen, of course, we do not know, but sometimes some of the minimum, the common safeguards which we should take or we ought to take as individuals, as citizens, we don't take. So to talk on this particular topic, we have very esteemed speaker with us, Mr. K.K. Mehta. He has also joined us as a very newly as a member of the, we are proud to have a gentleman like Mr. K.K. Mehta with us. And he has been referred to us by our own K.K. Modi sir, R.K. Modi sir. तो मैं R.K. Modi sir से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपने के मेहता साहब को इंट्रोड्यूस करें और प्रोग्राम को आगे ले जाएं. मोदी सर, फ्लोर इज ओपन टू यू. अनम्यूट कर लीजिए प्लीज. हेलो. मोदी साहब अनम्यूट कर लीजिए. के मेहता या ना अनम्यूट है. अभी आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही है, अभी आ रही है. प्लीज गो अहेड. थोड़ा सा अनस्टेबल हो गया है कनेक्शन. मिस्टर के मेहता is an electrical engineer and having post-graduate diploma in industrial safety. Retired from Nuclear Power Corporation of India Limited, DAE, that is Department of Atomic Energy. After completing 38 years of service as an additional chief engineer, fire and industrial safety, he has worked in different capacities like safety engineer, head, fire and safety, project engineer, fire and industrial safety in various nuclear power plants of NPCIL, right from construction to commissioning and then during operation of these plants. He retired in 2007 and since then he is engaged with National Safety Council, Power Engineering Consultants as an expert member and carrying out training, audit, etc. for these organizations. Besides that, he is my friend in morning walking and we discuss a lot of things, and he has also some completing social obligatory to enhance the image of Walkers Association track. He and his group. So, thank you. I have introduced him. Now we can proceed further. Mehta sir, floor is open to you, sir. Right, sir. Right, sir. Right, sir. Just a second, sir. So now, please just confirm my presentation is visible to you all. Yeah, it's visible, sir. Visible. Okay, and this from side these things can be removed. We are getting all photos and this because it may disturb. But anyway, if I feel trouble, then I'll tell you. So can I go ahead with sir? Yeah, please go ahead, sir. Okay, so I'll speak in both the language, Hindi and English. And I'll request everybody that if they've got questions, they can ask at the end of that. और मैं बीच में भी कोशिश करूंगा कि जहाँ जहाँ पॉसिबल हो वहाँ आपको बताऊं. तो basically, sir, first I will like to give some brief idea about the electrical safety. That is, what are the basics of the electricity, then their hazards and consequences of the hazards,
and then prevention, and then I will come to domestic safety. And one more thing, earthing, which is very important for our house, that I am not going to leave, that I will also I will take up. So having said that, I will start it now. Topics to cover: basic of electricity, hazards with the electricity, domestic electrical safety, house wiring, accessories, preventions, importance of earthing in electrical domestic gadgets. This I will try to cover as far as possible. Sir, basically this electricity acts like our friend. It acts like our friend and also like a faithful servant, because we have a lot of electrical gadgets in our house today. So it acts like our faithful servant also. But when? If safely used. If we use it safely, then only it is work like a friend and faithful servant. Otherwise, same electricity acts like our enemy, killer, and master with its hazards, and leads to electrical accidents. If adequate care is not taken in its use. Adequate care is not taken in its use. So it is very important to check all cables in our house. And it is equally important not to use one receptacle for number of loads. Equally important. Equally important. Don't be careless. Electrical hazards. Now I'll talk. Now we know the electrical hazards. Everybody will talk about the electrical shock. Yes, it is a hazard. Burns, it is another hazard. हाथ जल जाते हैं हमारे sometimes because of this. Then fire, घर में फायर हो जाती है, इलेक्ट्रिकल फायर तो हो जाती है, एक्सप्लोजन हो जाता है. अगर सेम स्पार्किंग या कुछ हो हमारे किचन में, जो हमारी एलपीजी है, तो एक्सप्लोजन डेफिनेटली होगा, definitely होगा. This and this electricity, it is of course in the industries, but in our house also. I have taken 2 slides for this that will cover this thing, and how it will cover it, that I will tell you later on. First I will talk about this static electricity. When we touch to the knob of a door, etc., sometimes it will some current. That is static electricity. Electrical hazard, shock, explode live conductor and terminals. Please check your step receptacle. जो आप प्लग लगाते हैं वो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए. This is face, neutral, earth. अगर किसी का भी हाथ लग गया तो मरेगा. Naked wires, don't allow, sir. Have a nice tape on it. Damage insulation, don't allow, sir. These are the cause of shocks, electrical shocks. Flash or sparks. This is definitely in our receptacle. If we are going to work on that, then there is a spark is there. And this is heat. Heat burns the body. Burns. There are 2 types of burns. One is contact burns. This is contact burn. When we touch the live wire, which is not insulated, then we'll get like this. Then thermal burns. Heat gives the thermal burns. And this is sometimes because of lighting also we get. Fire and explosion, I told you. Electrical fire in receptacles, sometimes due to overloading of MCB, miniature circuit breaker, which is a protection in our house. Ultimate protection from where the main supply comes. This is loading one receptacle, electrical fire. This is our MCB, where if it is loaded too much, then fire will take place. Static electricity. What is this? I tell you. Have your synthetic shirt have made crackling noises when you took it off? जब हमारी सिंथेटिक शर्ट को हम उतारते हैं तब हमको क्या आवाज आती है कभी कभी?
and that sound is like chat chat chat. If so, that it is having a static charge, so making crackling sound. A steady electricity charge typically produced by friction, which causes the attraction of hair. हम जब कंघा करते हैं साहब, तो कई बार क्या होता है कि हमारे बाल खड़े हो जाते हैं. That is also steady electricity. और बैलून जब बच्चे कभी सिर पे लगाते हैं, तो वो भी उनके बाल खड़े हो जाते हैं. That is electricity. First thing. Second example I will give you. This lightning. Clouds carry static charge. क्लाउड्स हमारे जो अभी बरसात का मौसम है, जो क्लाउड्स आकाश के अंदर है, ये चार्ज कैरी करते हैं सर. हमेशा चार्ज रहते हैं इनमें. और ये चार्ज जो रहते हैं, तो इनके बीच में जो एयर होती है वो ड्राई टाइम पे ड्राई होती है, जो इंसुलेशन का काम करती है. गर्मियों में या सर्दियों में वो ड्राई होती है, तो इंसुलेशन का काम करती है. लेकिन बारिश के दिनों में उस एयर के अंदर मॉइस्चर आ जाता है, तो ये टकराते हैं. इनके टकराने से आवाज होती है, साउंड होती है, जो हम सुनते हैं, और उससे होती है लाइटनिंग, अगर उनको मीडियम ग्राउंड पे आने का मिल जाता है. तो इन दैट केस दिस लाइटनिंग टेक्स प्लेस, व्हिच आई एम शोइंग यू इन माय सेकंड फोटो. इफ एटमॉस्फेयर इज वेट, देन द सेम लाइटनिंग कम्स टू द ग्राउंड. और हम कहते हैं लाइटनिंग हो गई, लाइटनिंग हो गई, लाइटनिंग हो गई. कहां गिरी लाइट? लाइट कहां गिरी? लाइट कहां गिरी? दिस इज लाइटनिंग, एंड दिस इज नथिंग बट द स्टैटिक चार्ज. Having said that, electrical shock. A person, उसको शॉक कब लगता है साहब? Electric shock only when her body becomes a part of a complete electrical circuit. और ये कब होगा? Bare electrical wire, नंगा तार, कंडक्टर जिसको बोलते हैं, और अर्थ बॉडी मिल जाएगी तो ऐसा होगा. या poorly insulated वायर या कंडक्टर और अर्थ बॉडी मिल जाएगी तो. और अर्थ पे तो हम खड़े हुए हैं, तार को हमने पकड़ा जिसमें इंसुलेशन नहीं है, तो हमको करंट लगेगा, शॉक लगेगा, क्योंकि अर्थ पे तो हम खड़े हैं, नंगे पैर खड़े हैं. इम्प्रॉपरली अर्थ इक्विपमेंट, और कोई इक्विपमेंट हमारा अगर प्रॉपरली अर्थ नहीं है. और सर ये मैं बार बार एम्फसाइज करूंगा, जितने भी आदमी यहाँ सुन रहे हो, प्लीज टुडे आइदर इट इज मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, हम लोगों के घर में कुछ न कुछ इलेक्ट्रिकल गैजेट्स होते हैं. इलेक्ट्रिकल गैजेट्स होते हैं और हम यूज करते डेली. और कौन यूज करता है? हाउस वाइफ मैक्सिमम यूज करती है. तो अर्थिंग हमको नेग्लेक्ट नहीं करना है, और उसकी वजह से शॉक लगता है. जो पोटेंशियल डिफरेंस जब हो जाता है तो हमको शॉक लगता है, और वो कोई भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, जिसको शॉक लगेगा. इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल शॉक, ये बड़ी अच्छी चीज है साहब समझने के लिए. इलेक्ट्रिकल शॉक इज नॉट ऑलवेज पेनफुल, हमेशा पेनफुल नहीं होता, बट यूजुअली. कैसे? करंट ऑफ वेरिंग मैग्नीट्यूड प्रोड्यूसेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजियोलॉजिकल रिपरकशंस इन ह्यूमन बॉडी. 10 मिलियम्स करंट 220 वोल्ट से जनरेट किया हुआ 10 मिलियम्स अगर उसका करंट है, काफी होता है साहब कि हम हमारा हाथ उस तार से नहीं छुड़वा सकते. 10 milliamps current, 10 milliamps only. This is threshold limit for sensible shock. As current value increases, repercussions start increasing. इसलिए वो कहता है can just feel, पहले can't let go, सेकंड में let go नहीं होता, और possibly fatal और otherwise probably fatal. यही 4 चांसेस होते हैं सर. इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगा आपको. इलेक्ट्रिकल शॉक इंटरनल इंजुरीज, ये और भी डेंजरस है. In 1972 I lost one of my friend in Rajasthan because of this. Excessive electricity flowing through the human body can cause serious damage to the internal organs. अगर ज्यादा करंट हमारी बॉडी से निकल गया है साहब, हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर गया है, या फ्लो कर गया है, तो हमारे इंटरनल ऑर्गन को डैमेज करता है, रिजल्टिंग मेडिकल प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग हेमोरेज. हेमोरेज सर, ये हेमोरेज हो जाता है. टिश्यू डिस्ट्रक्शन एंड नर्व और मसल डैमेज.
ऐसी रेडिशनेस आ जाती है सर बॉडी में अगर शॉक लगता है तो। और अगर ये चीज हो गई है तो प्लीज जस्ट रश टू द डॉक्टर, just rush to the doctor and take the treatment for that. Otherwise, these internal injuries may not be immediately apparent to the victim or observers. However, left untreated, they can result in death. They can result in death. So, अगर किसी को शॉक लगता है सर तो immediately medical attendance होनी चाहिए, मेडिकल डॉक्टर को आपको दिखाना चाहिए। इनवॉल्वड मसल कॉन्ट्रैक्शन हम क्यों नहीं छोड़ पाते साहब? जब शॉक लगता है तो केबल को क्यों नहीं छोड़ पाते? दिस इज द रीजन। नॉर्मल मसल कॉन्ट्रैक्शन इज कॉज्ड बाय वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी that it are created within our bodies. Muscles violently contract when stimulated by excessive amount of electricity. नहीं छोड़ सकते, फूल जाता है हाथ। These involuntary contractions can damage muscles, tendons, and ligaments, and may even cause broken bones. If the victim is holding an electrocuting object, hand muscles may contract, making it impossible to drop the object, and prolonging contact with the current would prove fatal. ये हम छोड़ ही सकते हैं, हमारे मसल्स ऐसे फूल जाते हैं कि जो वो हमारे हाथ से छूटता ही नहीं है। करंट फ्लोज इन अ लूप सर्किट, वी ऑलवेज नो दिस इज। सपोज कर लीजिए हमारी एक मिक्सी है, ये इस तरह की हमारे घर के अंदर यूज होती है, करंट फ्लो इन द लूप। कैसे चल रहा है साहब? देखिए आप, a mixer grinder is connected to single phase supply. Green wire indicates earthing. Always green wires indicate earthing in our domestic house wiring. Always. It is standard in India. Standard in India, green wire is only earthing wire. Red phase wire, black neutral. Phase wire is connected to mixer via indicator lamp and rotary switch which control the speed. Neutral through overload relay. Please mute. Green wire connected to mixture body, that is earthing wire. Now see sir, current flows in loop or circuit. Now we have mixture supplied to it given through 3-pin top, that is phase, neutral, earthing wires are properly connected, and protective relays is also in series with system. This mixture can be operated safely. इसमें सब कुछ है। ये फेज आपने 3-pin टॉप यूज किया है, अर्थ वायर है, और ये सब इससे जा रहा है। ये मिक्सचर आपकी हाउस वाइफ या कोई भी ठीक से यूज कर सकता है। नाउ कम टू नेक्स्ट सिनेरियो। Here same mixture used, but the earthing wire is broken and the phase wire is snapped. ये यहाँ पे टच कर गया phase wire. So now when the moment mixture will be operated, person will get the shock, and prolonged contact may cause electrocution, means fatal. This earth wire is broken and that wire is snapped there. Wire is snapped there and touching the body of the mixture. So what will happen? This mixture will be used in the house, then result is this: electrocution. Effect of electric current in human body. क्या होता है साहब? देखिए, 1 to 9 milliamps स्लाइड सेंसेशन। 1 मिलीएम्प से 9 मिलीएम्प तक करंट अगर हमको लगता है तो पर्सिबल शॉक थोड़ा होगा, झंझनाहट होगी, बट नॉट पेनफुल। बट 10 to 15 पेनफुल शॉक, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। 16 से 50 मिलीएम्प से मॉडरेट टू सीवियर पेनफुल शॉक, ब्रीथिंग डिफिकल्टी। नाउ व्हाई ब्रीथिंग डिफिकल्टी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वी शुड नॉट सर होता क्या है कि जो ही करंट हमको लगता है ह्यूमन को, तो ये हमारी बॉडी के अंदर घुसते ही इसकी टेंडेंसी होती है कि ये वेन के अंदर घुस जाता है। ये हमारा ब्लड सर्कुलेशन है, और ब्लड सर्कुलेशन में क्या होता है कि हमारे रेड सेल्स
ऑक्सीजन कैरी करते हैं, जो सांस हम लेते हैं उसको वो कैरी करते हैं। तो ये जो हमारे वेन के अंदर घुसता है तो ये स्टार्ट किलिंग द रेड सेल्स, स्टार्ट किलिंग द रेड सेल्स। जब रेड सेल्स को मारेगा तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी बॉडी को, तो हमको सफोकेशन होगा, ब्रीथिंग डिफिकल्टी। मायोकार्डियन कुछ इस तरह का नाम है इसका मेडिकल टर्म में। 15 to 100 ventricular fibrillation, fatal shock, electrocution, can just feel, can't let go, partial fatal, probably fatal। ये है, और ये वैल्यूज थोड़ी थोड़ी वेरी करती है एक्सपेरिमेंट के हिसाब से, ह्यूमन बीइंग के हिसाब से। Ventricular fibrillation, what is ventricular fibrillation, sir? Ventricular fibrillation, V is 5B and VF is an abnormal heart rhythm in which the ventricles of the heart cure instead of pumping normally. It is due to disorganized electrical activity. Ventricular fibrillation results in cardiac arrest with loss of consciousness and no pulse. Causes coronary heart disease, including myocardial. Symptoms: cardiac arrest with loss of consciousness with no pulse. Treatment: CPR, cardiac pulmonary resuscitation with defibrillator। और ये बहुत जरूरी चीज है, ये सबको आना चाहिए CPR घर के अंदर, क्योंकि ये डॉक्टर अग्रवाल, मैंने मोदी साहब से भी डिस्कस किया था, डॉक्टर अग्रवाल थे पद्मश्री, वो कोरोना के पीरियड में उनकी डेथ हो गई है, ही वाज अ पद्मश्री। उन्होंने कहा था कि फर्स्ट 50 seconds, if you can 50 seconds if you can attend, then you can save the life। एंड उसने दो इनके बॉलीवुड के उनका भी नाम लिया था, एक तो अमजद खान, एक कोई दलवी थे उनका, कि दे कुड हैव बीन सेव्ड टाइमली। अगर आपको CPR आता है तो CPR इज ए मस्ट। तो ये वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन क्या होता है साहब, कि हमारी जो आर्टलरीज है ये इस तरह से हो जाती है, ट्विस्ट कर जाती है, ट्विस्ट। Once it twists, the circulation is not there, pumping is not there, and therefore rhythm is not there, and therefore it cannot be done without CPR। It cannot be reversed back without CPR, और defibrillators आते हैं मार्केट में, but for that also first hand knowledge is a must। Having said that, now severity of the shock depends what? It depends on अमाउंट ऑफ करंट, हमारी बॉडी में कितना करंट गया, ड्यूरेशन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, पाथ ऑफ फ्लो ऑफ करंट, टाइप ऑफ एनर्जी AC और DC, फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट इफ AC, environmental condition, please note what does it mean? Means are we dry or wet? Most of the time housewives, those who are working in the kitchen, they are sweating. Sometimes they may not be, but most of the time, because of humidity, this and that, heat from the our gas, etc., or steam or smoke, whatever, they are sweating. So that is the environmental condition। और environmental condition में क्या होता है कि हमारी बॉडी का रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाता है, मैं बताता हूं आपको। और एक ये दूसरा, लो वोल्टेज डज नॉट मीन लो हैजार्ड। अगर वोल्टेज कम है तो इसका मतलब आप ये मत समझ लेना कि आपका खतरा कम हो गया है बॉडी का। 220 वोल्ट हमारे घर के अंदर आता है साहब, समटाइम 440 भी आता है, लेकिन 110 वोल्ट अगर आता है तो आप ये मत समझिएगा कि हमारे घर का खतरा खत्म हो गया है, कम हो गया है। अमाउंट ऑफ करंट, ये एक और लॉ है, मैं सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स या और इंजीनियर्स इसके बारे में जानते होंगे, अदर पर्संस ये हाउसवाइफ इसके बारे में शायद नहीं जानती हो, तो मैं उसके डिटेल में जाऊंगा, लेकिन ये होम्स लॉ है और इसके हिसाब से ये फॉर्मूला है कि I = V अपॉन R। I करंट को बोलते हैं, V वोल्टेज होती है, R बॉडी का रेजिस्टेंस होता है, या उसका कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस ह्यूमन बॉडी का वेरी करता है पर्सन टू पर्सन और सेम पर्सन अंडर डिफरेंट कंडीशंस। ड्राई स्किन 1 lakh to 6 lakhs, वेट स्किन का कितना कम हो गया साहब, 1000 ohms। तो हमारे घर के अंदर जब किचन में कोई काम कर रहा है या अदरवाइज कहीं और भी कोई काम कर रहा है और उसके हाथों में स्वेटिंग है, पाँव में स्वेटिंग है, तो समझ लीजिए सर
कि उसकी बॉडी का रेजिस्टेंस कम हो गया है, या बारिश में गीले होकर के बाथरूम के अंदर अगर गीजर वीजर का हाथ लगा रहे हैं, वी हैव टू बी वेरी मच केयरफुल, वेरी वेरी मच केयरफुल, क्योंकि वहां पानी होता है। विद डिफरेंट ऑर्गन्स, हैंड टू फुट 400 to 600 या 500 ओम एवरेज आता है, और ईयर टू ईयर 100 ओम्स होता है। ओम एक इकाई है, जैसे फिट होती है कोई इकाई नापने की, ऐसे करंट की इकाई ओम है। बॉडी रेजिस्टेंस, very important thing, sir. The total body resistance of the person is composed of internal body resistance plus the two skin. कौन सी? एक तो बाहर की स्किन जो हमारी डेड है, और एक अंदर की स्किन जो लाइव है, contact resistance. The skin contact resistance will usually be between 1000 to 1 lakh ohms, depending on contact area, moisture condition of the skin and other factors. अब आप एक चीज देखें साहब, what we are, हम कंडक्टर है सर, we are conductor, like wire, we are conductor. क्यों? Human body is also a conductor. It is obvious, because whenever a person come in contact of live conductor, he receives a shock. Means मेरी बॉडी से करंट पास हो रहा है तो हम कंडक्टर है, बट हम रेजिस्टेंस भी हमारी बॉडी के अंदर है, जैसे केबल में होता है, वायर में होता है, वैसे उसको रोकने की शक्ति भी थोड़ी बहुत हमारे अंदर है। But once it is a conductor, it should have resistance also. Yes. By various experiments, researchers have arrived on the conclusion that different parts of our body have different values of resistance, such as ear to ear 100 ohms, hand to foot 500 ohms. Dry skin resistance of human body varies from 1 lakh to 6 lakh ohms. Wet skin 1000 ohms, 100 times less as up, and this is 500 ohms. Hand to leg, hand to foot 500 ohms. Deliberately I am telling it because by the example in the last is depend on this 500 ohms. Compare between wave voltage in different skin conditions. देखिए साहब, मैं थोड़ा सा आपको इसका एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि लो वोल्टेज डज नॉट मीन लो हैजार्ड। क्यों? क्योंकि मैं इसको 110 वोल्ट को 400 वोल्ट को ले रहा हूं। रेजिस्टेंस मेरा ये है साहब, 1000 वेट का होता है, मैंने 1100 लिया है कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये 1 लाख में आपको बता चुका हूं पीछे। अब देखिए साहब, करंटली I = V upon R, then it is 110 upon 1100 and 400 upon 1 lakh. Result is 0.1 amps and 0.004 amps. ड्राई स्किन में मेरे को मिल रहा है सर 4 मिलीएम्प्स यहाँ पे और 100 मिलीएम्प्स वेट स्किन में, मींस फैटल शॉक। और मैंने बताया था आपको 1 मिलीएम्प्स टू 9 मिलीएम्प्स शॉक बट नॉट पेनफुल। सो अगर वोल्टेज कम है, इसका मतलब आप ये मत समझिएगा साहब कि हैजार्ड्स कम हो गए। कितनी भी कम वोल्टेज हो घर के अंदर, वी शुड बी वेरी मच केयरफुल। ये डेलिबरेटली मैं जान करके उन लोगों के लिए बता रहा हूँ, दोज हु आर वर्किंग इन द इंडस्ट्रीज एंड प्लेइंग विद द हाई वोल्टेजेस, दे टेक इट गारंटीड करे ये तो 220 वोल्ट है या 110 वोल्ट है। नो प्लीज, एवरी वोल्ट इज डेंजरस, एवरी करंट इज डेंजरस। और यहां मैं एक चीज आपको और बता दूं, शॉक जो लगता है ना, वो करंट से नहीं लगता है, वो वोल्टेज से नहीं लगता है, वो लगता है इंटेंसिटी या मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट, और इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड उसको देता है वोल्टेज करंट को, तब शॉक लगता है। इलेक्ट्रिकल बर्न्स, मैंने शॉक आपसे डिस्कस किया, बर्न्स, कॉन्टैक्ट बर्न्स, फ्लैश ओवर बर्न्स, कॉन्टैक्ट बर्न्स, थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट प्रोड्यूस हीट इन द बॉडी। जब करंट फ्लो करता है तो वायर गर्म होता है, लेकिन उसकी डिजाइन ऐसी होती है कि उसका जो इंसुलेशन है वो इंटैक्ट रहता है। तो कहता है थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट प्रोड्यूस हीट इन द बॉडी इन कॉन्टैक्ट विद चार्ज कंडक्टर। हीट प्रोड्यूस इज गवर्न्ड बाय जूल्स लॉ। बस आप इतना ही याद रखिए कि H² RT होता है, ये हीट जनरेट करता है। I is current, R resisted, T is time. Contact burns. This is superficial burns. This is first degree burns.
This is second degree burns, and this is third degree burns. Which bond comes out lag flexotomy. फ्लैश और बर्न्स, ये फ्लैश और बर्न्स हमारी लाइटनिंग की वजह से भी होता है, और अगर हम पैनल के सामने करें और एकदम ब्लास्ट हो गया तो उसकी वजह से भी होता है. When earth human body comes very close to high voltage line, क्यों बोलते हैं कि भाई हाई वोल्टेज लाइन के नीचे से एटलीस्ट रेनी सीजन में नहीं निकलना चाहिए. एयर इंसुलेशन जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ रखता है, ब्रेक्स एंड प्रोड्यूसेस एन आर्क. ये आर्क प्रोड्यूस करता है सर. The arc is the air in between and reduces the air resistance, allow more current to pass. Flame of the arc burns the skin of the victim. So never ever we should go under the overhead line, at least during rains. Precautions. What precaution? During monsoon, it is advisable that never walk under overhead lines, irrespective of voltage, and never use your mobile phone. Sir, don't use. Fatalities ho chuki hai. Don't use your phone, and never walk under overhead lines. Never. This moisture points the conductive part that could result in that. Never only wear tools. Remove your ज्वेलरी. अगर बाय दी वे आपको जाना ही पड़ता है कि आपकी वॉच के अंदर मेटालिक स्ट्रिप है, चेन पहन रखी है, अंगूठी पहन रखी है और जाना ही जरूरी है उस सीजन में, तो जितना पॉसिबल हो कंसील इट, रिमूव इट एंड देन गो. फ्लैश और बर्न्स, सुपरफिशियल बर्न्स, फर्स्ट डिग्री बर्न्स, सेकंड डिग्री बर्न्स and third degree burns. This is flash or burns. Fire and explosion. Electrical fire occurs due to short circuiting. और अभी जब मैंने चालू नहीं किया था मेरा लेक्चर, तो उसके पहले वन जेंटल लेडी वाज टॉकिंग टू मिस्टर मोदी जी कि आग के बारे में. मोदी जी बता रहे थे शॉर्ट सर्किट. हमारे यहाँ जितने भी फायर हुई है बिल्डिंग्स में, बॉम्बे की फायर नहीं कर रहा हूँ मैं, दिल्ली की भी बात कर रहा हूँ, कॉस्मोपॉलिटन सिटीज की बात कर रहा हूँ, it is either because of short circuiting or because of overloading. दो ही कारण है जिसकी वजह से फायर हुई है. लूज कनेक्शंस, ये थर्ड है कारण. लेकिन शॉर्ट सर्किट इज मेजर कंट्रीब्यूटिंग फॉर एवरी फायर. शॉर्ट सर्किटिंग, सर्क्यूट रेजिस्टेंस ड्रॉप डाउन टू जीरो, ऑलमोस्ट जीरो. ये जीरो कभी भी नहीं होता है, लेकिन ड्रॉप डाउन टू जीरो ये कब होता है? जब फेज वायर टचेज द न्यूट्रल वायर. हमारे यहाँ दो वायर जा रहे हैं साहब, एक फेज वायर है और एक न्यूट्रल वायर है. अब इनका इंसुलेशन अगर कट गया तो ये शॉर्ट हो गए, तो वो हो गया शॉर्ट सर्किटिंग. या थ्री फेज में क्या होता है, आर बाई बी, तीन फेज होते हैं, उनमें से दो फेज हो गए तो शॉर्ट हो गया, तो उसकी वजह से ये शॉर्ट सर्किट होता है. और अगर ये कंटिन्यूस बहुत देर तक रहता है तो हीट जनरेट होती है और आई मीन हमारा डिस्कनेक्शन हो जाता है कंप्लीट. ये आग लगती है इस तरह से आग लगती है कि हमको वो स्मेल आती रहती है यार, इंसुलेशन जलने की स्मेल आ रही है यार, इंसुलेशन क्या जल रहा है, बिकॉज इट इज ओवरलोडेड. यू ओवरलोडेड योर इक्विपमेंट्स, यू आर ओवरलोडेड सर. मैं आपको एक एग्जांपल अभी देता हूं. ओवरलोडिंग, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट और केबल ड्रास मोर करंट देन इट्स रेटेड कैपेसिटी. मेरे पास एक केबल है जो 15 एम्पियर लोड ले सकती है, अब मैं उसमें 50 एम्पियर लोड डाल दिया मैंने, तो कितनी देर रेजिस्ट करेगी साहब? वो तो जलेगी. मोर करंट लीड्स टू मोर जनरेटिंग हीट टू बर्न द केबल, इंसुलेशन गेट्स द फायर. होगी, आग लगेगी. एक ही उससे चला रहा हूं मैं, ये कोई मतलब थोड़े है साहब. So we have to be very much, we have to apply our brain. Application mind is very much, is a must for this. And in our house, और हाउस में आप क्या बात करते हो साहब? कितने हमारे इक्विपमेंट्स है we are using right from TV onwards. आज टीवी के बिना कोई रह नहीं सकता.
Overloading. A classic example of overloading. A person utilizing electrical power for all the electrical gadgets from the one receptacle. लो साहब, अब कर लो, आप क्या करोगे? कहां तक चलेगा ये? कितनी देर चलेगा साहब ये? फ्रिज भी उससे, पंखा भी उससे, कंप्यूटर भी उसका, आयरन भी उससे. It's a sort of example, of course. It does not have, but there are persons doing. एक से दो तीन इक्विपमेंट चलाते हैं, एक से दो तीन चलाते हैं. तो these are the results. अब आप समझ लीजिए साहब कि एक आदमी 50 किलो उठा सकता है और उससे आप बोलो 200 उठाओ तो थोड़ी दूर चल के गिर जाएगा. सेम विद द पावर प्लग. कितनी देर चलेगा ये? बेसिक कॉज ऑफ शॉर्ट सर्किटिंग ओवरलोडिंग क्या है? बेसिक कॉज ऑफ इंसुलेशन फेलियर. Insulation failure occurs due to aging. Sir, will take 2 minutes. Please, your attention. कोई भी आप में से एक सज्जन ले लीजिए जिन्होंने एक फ्लैट खरीदा हो या किराए पे लिया हो और नौकरी शुरू करी हो. जब उन्होंने शुरू करी होगी साहब, उनके पास फ्रिज होगा. सबसे पहले आदमी फ्रिज ही लेता है. फिर धीरे 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 उन्होंने माइक्रोवेव भी ली होगी, टोस्टर भी लिया होगा, मिक्सचर भी लिया होगा. ये तो लोड बढ़ रहा है साहब, लोड बढ़ रहा है ना. टीवी ऑलरेडी है और बंबई में तो ऐसा साहब कि डेजर्ट कूलर से तो काम चलता नहीं, एसी लगाना पड़ता है इफ यू कैन अफोर्ड इट. ठीक है, लेकिन हमारी वायरिंग तो वही थी ना जो हमने फर्स्ट डे रखी. उस वायरिंग को न तो हमने चेक किया और वो एजिंग होती जा रही है, बुढ़ी होती जा रही है वो. तो हमने चेक करवाया क्या साहब उसको? मैं कहता हूं 99% हम लोगों ने चेक नहीं करवाया. नहीं करवाया तो ये हालत होगी. अटैक बाय इंसेक्ट रोडेंट्स. हमारा खाना पीना ऐसा है और जिस घर में बच्चे हैं वहां तो मतलब खाना जमीन पे गिरता ही है, तो ये माशे भी आएंगे साहब, ये भी आपकी केबल को काटेंगे, जलाएंगे. और ये हाउस वाइफ्स को पता नहीं होता कि मैं आटे का डिब्बा कहां रख रही और वो केबल के ऊपर रख देते. अब गई केबल मेरी. बेसिक कॉज ऑफ शॉर्ट सर्किटिंग एंड ओवरलोडिंग ये है साहब. लूज कनेक्शंस. सर कभी कभी हमारे जो ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड्स हर रूम में लगे हुए हैं, इनके पास से हम निकलते हैं ना तो कभी कभी साउंड आती है किर 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 किर. वो होता है लूज कनेक्शंस. और मोस्ट ऑफ द इक्विपमेंट, चाहे आप किसी भी एंकर का ले लो, किसी का भी ब्रांडेड ले लो, हेवल का ले लो, तो ये सब प्लास्टिक के हैं. इट occurs at cable of the wire and equipment junction box, connector junction box. Loose connection leads to formation of arc and produces heat of the fire. In our house also, when we pass near electrical boards, sometimes we have crackle shock sound and that is loose connection. But if not attended, it may lead to power induction, burning receptacle or wires. Yeah. Then we'll search for the electrician. यार क्या हो गया? What happened? This I just gave you a brief of basics. Now I am coming to the domestic electric safety or home safety. So home safety में मैंने क्या कवर किया साहब, ये देखिए. कंप्लीट हाउस वायरिंग. कंप्लीट हाउस वायरिंग, इसमें अर्थिंग भी होगा, इसमें एमसीबी भी होगी, इसमें फैंस भी होंगे, सब कुछ होगा. डोमेस्टिक गैजेट्स. अब आप देखिए साहब, ऑलमोस्ट इन एवरी हाउस होल्ड, irrespective of their class, middle class, lower middle class, there are certain electrical gadgets which are required in day-to-day living. They are such as, किसके पास नहीं होगा फ्रिज? हर एक के पास होगा. मैं तो एडिशनल चीफ इंजीनियर से हूं, लेकिन मैं तो लाइनमैन के पास भी फ्रिज था. टोस्टर, it is also requirement, sir. Mixture, it is also requirement. And these are not the luxury, sir. These are not the luxury. These are today's requirements. These are today's requirements. इसके आगे भी है साहब. According to need, it is seen that microwave ovens, washing machines, or even the dishwashers are also found in most of the houses.
टुडे। सब मिलेगा आपको, डिश वॉशर मिलेगा, ओवन मिलेगी आपको, टोस्टर मिलेगा, केटल मिलेगी, आयरन मिलेगी, मिक्सर मिलेगा, कॉफी मशीन मिलेगी, प्रेशर कुकर मिलेगा, इलेक्ट्रिक फैंस मिलेंगे, सब मिलेगा आपको आजकल। इट इज नॉट ए लग्जरी, इट्स ए रिक्वायरमेंट एज पर आवर वर्किंग कंडीशंस. Now, out of all these, I will talk about the fridge, sir. Why? Because fridge is a requirement everybody has got. So what precautions we should take about the fridge? I'll tell you. But before that, मैं ऑनलाइन हूँ, ऑफलाइन होता तो बात जरूर दूसरी तरह की होती. लेकिन सर मुझे बता दीजिए, यहाँ जितने सुन रहे हैं, जितने बैठे हुए हैं, हर एक के पास फ्रिज है, और किसी के पास 10 साल से होगा, किसी के पास 15 साल से होगा, किसी के पास 20 साल से भी हो सकता है, 5 साल से भी हो सकता है. किसी ने उसकी सप्लाई केबल कभी चेक करिए कि ओके है कि नहीं है? इज इट ओके और नॉट? आई बेट देयर मे बी वेरी फ्यू पर्सन्स, देयर मे बी वेरी वेरी फ्यू पर्सन. मैं तो साहब पूरे इंडिया में दुबई, जद्दा 3-4 जगह होकर के आया हूँ. मैंने तो जहां पूछा मुझे तो नहीं मिला. इवन ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल का भी मैं मेंबर हूं, वहां भी मैंने पूछा तो मुझे नहीं मिला ऐसा कोई बंदा. A most commonly used electric gadget is fridge. Almost every house it is used. So let us discuss the case of fridge. When a fridge is installed in a house, it is noticed that the day it is commissioned, it starts functioning. It never stops working till either it has stopped functioning due to certain fault or users is going on wrongly. जिस दिन से मेरे घर के अंदर फ्रिज आता है साहब, उस दिन से चलता है, तो या तो वो खराब होगा तभी मैं उसको देखूंगा, या मैं लॉन्ग लीव पे जा रहा हूँ 6 महीने 8 महीने के लिए, 2-4 दिन के लिए तो नहीं, 6-8 महीने के लिए जा रहा हूँ, तो उसको बंद करके जाता हूँ. अदरवाइज जैसा जिस दिन पैदा हुआ था मेरा दिल धड़कना शुरू किया था, तो ये धड़क रहा है, और जब तक धड़केगा जब तक मैं जीता हूँ, या इसमें कोई खराबी आएगी तब. Having said that, पहले क्या था साहब, some 2-3 decades before, हमारे जो फ्रिज होते थे उसके पीछे की जो फिन्स होती थी, कूलिंग फिन्स, वो ओपन होती थी, एक्सपोज होती थी. अब क्या हुआ साहब कि वो इस तरह की होगी, कवर्ड. सो हीट जितनी भी कूलिंग दे रही है फिन, वो इससे डिसिपेट होती है, इससे निकल के बाहर आती है. मीन्स इट इज स्लाइटली मोर डेंजरस कंपैरेटिवली, इफ यू आस्क मी. पहले वो खुली हुई थी, अभी ये बिल्कुल बंद हो गई है. तो हमारी रेस्पिरेटरी ठीक है, फॉर द बेटरमेंट और फॉर द इम्प्रूव द एविडेंस ऑफ द थिंग दे हैव डन इट. बट हमारी आई मीन क्या कहूं उसको, ड्यूटीज और बढ़ गई है टू कीप इट सेफ. हाउ? ऑपरेटिंग और फंक्शन ऑफ फ्रिज, ये थोड़ा सा बताऊंगा. व्हेन द रेफ्रिजरेटर इज वर्किंग, द फ्रिज कंपार्टमेंट और फ्रीजर कंपार्टमेंट जब वो चलता है, तो फ्रीजर कंपार्टमेंट विल बी कूलिंग और फ्रीजिंग द हीट. फ्रीजिंग द हीट दैट इज एब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द फूड of refrigerator will change to the heat temperature high pressure. वो हमारे जो फ्रूट्स, सब्जियां या और कुछ भी रखा उसकी हीट को लेकर के वो जो गैस है वो बाहर देगी, कंडेंस करके नीचे जाएगी, ये इसके अंदर से निकाल करके नीचे जाएगी. दिस इज कंडेंसर जो नीचे रहता है. The gas enter to condenser and dissipate the heat through the condenser. For the refrigerator, neat appearance, condenser is installed on the back or both sides of the refrigerator. उसको बढ़िया बनाने के लिए वो दोनों साइड पे ये नीचे रखा जाता है. So when you touch the cabinet that install the condenser, it is warm. Especially in summer it will be hot. क्योंकि वो नीचे है कंडेंसर, इसलिए आपको हीट लगेगी. ये इस तरह से. अब क्या होता है साहब, प्रिकॉशन. ये हमारी प्रिकॉशन देखे साहब, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर कोई हाउस वाइफ बैठी है तो वो भी, और जेंटलमैन जो बैठे हैं उनको भी, कि आप क्या करें, कीप द रेफ्रिजरेटर मोर देन 10 सेंटीमीटर या 4 इंच अवे फ्रॉम द वॉल. बिल्कुल चिपका के मत रखे सर.
फ्रिज को कम से कम 4 इंच उसको आगे रखिए, क्योंकि मोस्टली अपना मिडिल क्लास के लोगों किचन में फ्रिज रखा जाता है. कीप द रेफ्रिजरेटर टू द वेंटिलेटिव प्लेस, जहां उसको हवा मिल सकती. ये सपोज कर लो ये वॉल है जिसमें आपका पावर पॉइंट लगा हुआ है और यहां से सप्लाई लेकर के आपने इसको दी है. ये हीट दे रहा है, डिसिपेट कर रहा है और ये कूलिंग है, ये कूलिंग दे रहा था. तो क्या हो रहा है कि इसको हीट नहीं मिल रही, इट इज नॉट गेटिंग द हीट, और आपने दूर भी रखा है इसको कम से कम 4 इंच. तो ये प्रिकॉशन आपको लेनी पड़ेगी साहब रेफ्रिजरेटर के लिए. अब आगे क्या बोलता है वो, अबाउट द टेम्परेचर ऑफ द साइड्स एंड बैक ऑफ द रेफ्रिजरेटर द स्टैंडर्ड इज, ये स्टैंडर्ड है कि हमने स्टैंडर्ड मान लिया कि 25 डिग्री टेम्परेचर एम्बिएंट टेम्परेचर है, मतलब एक नॉर्मल टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का. तो द मैक्सिमम टेम्परेचर मेजर ऑन कोटेड मेटल सरफेस ऑफ अप्लायंस एनक्लोजर मस्ट नॉट बी मोर देन 85. तो डिजाइन हमारा ऐसा किया गया है साहब, रेफ्रिजरेटर ये ऐसा डिजाइन किया गया है कि अगर 25 डिग्री टेम्परेचर नॉर्मल रहता है हमारे एटमॉस्फेयर का, तो हमारे ये जो कोटेड पार्ट है फ्रिज का, इसका टेम्परेचर 85 डिग्री से ज्यादा नहीं जाना चाहिए किसी भी हालत में, किसी भी हालत में. और उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, कूलिंग एरिया में रखना पड़ेगा जहां इसको मैक्सिमम वेंटिलेशन मिल रहा हो, हवा इसको मिल सकती हो, वहां रखना पड़ेगा. और दीवार से 4 इंच, कम से कम 4 इंच, कम से कम 4 इंच दूर रखना पड़ेगा आपको. हैविंग सेड दैट, नहीं तो क्या होगा सर, ये हो जाता है, ये केबल मेरी जल जाएगी और यहाँ हीट रहेगी, काफी हीट रहेगी. और चूंकि वी डोंट चेक डेली कि हमारे पीछे हीट तो नहीं है, पीछे हीट तो नहीं है, सो दिस इज द प्रिकॉशन वी हैव टू टेक फॉर दिस. And I request you, please, if you have not done so far, please do it and check this cable regularly. Of course, it's all-weather cable and it's designed like this. But even then, अभी लेक्चर शुरू होने के पहले बात हो रही थी कि आप कितनी भी मतलब भगवान बचाएगा, भगवान तभी बचाएगा जब हम कुछ काम करेंगे, वो भी उसी की रक्षा करता है. He helps them to help themselves. Having said that, a line diagram ये इस तरह का होता है सर. यह फेज न्यूट्रल अर्थ, ये यहाँ से MCB, यहाँ से इसमें आया और इस तरह से सप्लाई. So you have to check your fridge is getting earth or not. अर्थिंग आपके फ्रिज को मिल रही है या नहीं मिल रही, that is a must. क्योंकि फ्रिकेट ऑफ कोर्स हाई डेंसिटी प्लास्टिक ऊपर होती है, लेकिन कई पुराने फ्रिज में कई रीजन से वो प्लास्टिक हो जाती है और अगर अर्थिंग नहीं है तो शॉक लगेगा. प्रिवेंशन, नाउ आई टॉक अबाउट द प्रिवेंशन. तो हमारे घर में क्या प्रिवेंशन होगा, इलेक्ट्रिक हैजार्ड लाइक शॉक, बर्न, फायर कैन बी एलिमिनेटेड और मिनिमाइज्ड और रिड्यूस्ड बाय फॉलोइंग टेक्निक. क्या टेक्निक है सर, सेफ इंस्टॉलेशन. मेरे घर की इंस्टॉलेशन सेफ होनी चाहिए सर, प्रॉपर मेंटेनेंस, कंप्लायंस विद सेफ्टी रूल्स. ये अगर मैंने कर दिया तो नहीं के बराबर चांसेस रह जाते हैं एक्सीडेंट. प्रोटेक्टेड डिवाइसेस, हमारे घर के अंदर MCBs लगी है साहब, वो काम कर रही है कि नहीं कर रही है, कर रही है कि नहीं कर रही है? यू आर श्योर अबाउट इट? आर यू श्योर? फाइन. सो मैं इसको थोड़ा सा आपको डिस्कस करता हूं. Safe installation. It is very important thing that the electrical installation in our house should always be kept safe and free from every electrical hazards. In most of the families, साहब मैं तो साफ बात बताऊं, ये एक ट्रेंड है अपना that we go to work office to earn bread and butter. साहब हम लोग घर से निकलते हैं bread and butter कमाने के लिए. किसके लिए? उनको जिनको घर पे छोड़ के जा रहे हैं, उन्हीं के लिए ना है. Dearest kith and kin, leaving them in the house. So it becomes upon duty that the house wiring
house, everything is safe. So the safety should be first for us. बच्चे innocent है, आप नहीं. So your toaster should have earth. ऐसा नहीं हो कि शॉक लग जाए, और शॉक लगने के बाद अगर मैम साहब बच गई तो शाम को आपको बहुत तगड़ा शॉक लगेगा फिर. ये भी आप ध्यान रखिए. Safe installation. Electrical wiring in the house must be done by approved, registered electrical contractor or electrician. ऐसे एरे गेरे नत्तू फेरे को मत बुला लो साहब, करे आया जरा ठीक कर जाना, वो टेम्पररी ठीक करेगा, उसको आता नहीं है फिर भी. Always use only branded electrical gadgets and wiring material. Always. Most of the houses since long preferring concealed wiring. हम लोग आज मतलब concealed wiring prefer करते हैं. That definitely improve the ambience. हाँ, उससे घर का ambience बहुत बढ़िया आता है, wire लगते हुए नहीं दिखते. But also makes more responsible to custodians. जो हम custodians है wiring के, house wiring के, तो हमारी जिम्मेदारियां और बढ़ जाती है सर. ये this is open wiring. Sorry, this concealed wiring and this is open wiring. Section भी बताया, खोल के बताया उसको. All weather wiring should be used for concealed wiring. All weather wiring. Don't compromise on quality. क्वालिटी से इलेक्ट्रिकल के बारे में कभी भी कंप्रोमाइज मत करना सर, कभी भी कंप्रोमाइज मत करना. House wiring. Generally, when a house or flat owner intend to do house wiring, a question comes to his mind, that is which cable is good for house wiring. Wiring is done either by copper conductor or aluminum conductor. Both have their merits and demerits. Copper conductor is a good conductor of electricity. It is used in wiring material in cables. It has low resistance and is used for conduction of electricity at high, medium, low voltage, but slightly costly. Yes, slightly costly होता है साहब. Aluminum, it is lightweight and cheaper in comparison to copper. Therefore, this type of conducting material is mostly used in electrical wiring. It is silvery white in color and it has a soft texture. It is often used in wiring and making cables. ये भी यूज होता है. वो कॉपर थोड़ा महंगा है. दोनों में से कोई भी यूज किया जाता है. Proper maintenance. It is always advisable that the house wiring fittings protection devices should be tested periodically to avoid untoward happening, such as short circuit, fire, etc. This. A very important thing, insulation of the house wiring should be done periodically. हमारी हाउस की जो वायरिंग है साहब, उसका जो मेंस आ रहा है, फेज न्यूट्रल आ रहा है, उसको वो मेन से डिस्कनेक्ट करके सप्लाई को ऑफ करके मैगरिंग करता है. रजिस्टर्ड जो होते हैं, ये जो रजिस्टर्ड्स होते हैं, ये उसको मैगरिंग करते हैं. मैगर मीटर आता है और उसका आईआर वैल्यू देखता है. आईआर मतलब इंसुलेशन रेजिस्टेंस वैल्यू. ठीक, हमारा जो कंडक्टर पूरे घर के अंदर गया है उसका इंसुलेशन वैल्यू क्या है, एंड इट शुड बी इन मेगा ओम्स. मेगा ओम्स like this. He test it. Always call qualified registered electrician contractor to check, test house wiring. Total devices like RCCBO must be tested regularly. हमारा जो इसको हम MCC बोलते हैं, MCC भी बोलते हैं, ये RCCBO है. मैं बताता हूँ अभी एक दो तीन स्लाइड्स में आपको. वो है, वो उसका रेगुलरली टेस्ट होना चाहिए. वो ट्रिप भी होता है कि नहीं होता, शॉर्ट सर्किट पे, ओवरलोडिंग पे, अर्थ फॉल्ट पे, वो ट्रिप ही नहीं हो रहा हो, खराब हो गया हो और हम यूज कर रहे हो उसको, वो भी नहीं होना चाहिए. Compliance with safety rules. Always use 3-pin top with all your electrical gadgets. 3-pin top. Earthing system of the house wiring should be intact. Get it tested regularly. 3-core supply cables of all electrical gadgets should be free from every defect and should have proper insulation. Proper insulation. Loose connections of sockets, switches should be tightened the moment it is noticed failing, which it may lead to fire, public breakdown. Broken covers of switch
board, distribution board should immediately replace to avoid accident contact. Accidental contact अवॉइड करना चाहिए सब. इसको ब्रोकन अगर है तो उसको इमीडिएटली चेंज कर दो. ये नहीं कल कर देंगे, परसों कर देंगे. बिजली के मामले में साहब बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसके जो कॉन्सिक्वेंस है वो अच्छे नहीं है. मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स, द लास्ट प्रोटेक्शन डिवाइस. देखिए साहब, MCB are time delay tripping devices. To be the magnitude of overcurrent controls the operating time. This means these get operated whenever overloads exist long enough to create a danger to the circuit being protected. क्या है साहब, फ्यूज क्यों नहीं लगाते हैं? फ्यूज लगाने से क्या होता है कि अगर एकदम कोई सर्ज आया तो वो फ्यूज उड़ जाएगा. और ये एमसीबीज में क्या होता है कि ये वेट करती है, सम टाइम के लिए वेट करती है, और फिर अगर तब भी फॉल्ट नहीं जाता तो ये ट्रिप करती है. जैसे मान लो एमसीबी का, अपना एमसीबी का क्या, एयर सप्लाई कंपनी का कोई एक जर्क आया, शॉर्ट आई, तो फ्यूज होगा तो ट्रिप उड़ जाएगा. लेकिन ये उसको रजिस्ट करेगा 2-3 सेकंड सम टाइम तक और फिर उड़ेगा, अगर वो कंटिन्यूस रहता है तो. इसलिए हम एमसीबी प्रेफर करते हैं. वो बोल रहा है देयरफॉर एमसीबीज डोंट रेस्पॉन्ड टू ट्रांजिट लोड, जो इमीडिएटली आता है, सच एज स्विचेस सर्जेस एंड मोटर स्टार्टिंग करंट. अब जैसे फ्रिज स्टार्ट हुआ तो शुरू में ज्यादा करंट लेगा वो, और धीरे 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 कम होता चलेगा. तो अगर फ्यूज होगा तो उड़ जाएगा एकदम, अगर रेटेड फ्यूज है तो. सेकेंडली, फ्यूज इसलिए भी नहीं बांधते साहब कि मेरे को जरूरत है 5 एम्पियर की फ्यूज की. अब मेरे घर में लोड बढ़ गया ज्यादा, तो मैं 5 का उसको 15 एम्पियर का मोटा तार लगा दूंगा, तो वो उड़ेगा तो नहीं, लेकिन बाकी वायरिंग को उड़ा देगा वो. इसलिए I will use MCB for that. Therefore, MCB don't respond to transient load such as switches, surges, and motor starting current. Generally, these are designed to operate at less than 2.5 milliseconds during short circuit. अगर to short circuit 2.5 milliseconds से ज्यादा रहता है तो ट्रिप कर जाएगा. And 2 seconds to 2 minutes in case of overloads. अगर ओवरलोड मेरा है 2 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक का, तो ही ये ट्रिप करेगा, नहीं तो नहीं करेगा. ये शॉर्ट सर्किट है और वो ओवरलोडिंग. मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि आपके यहाँ इलेक्ट्रिकल गैजेट्स अगर बढ़ गए हैं और आपने इनिशियली जो फ्लैट लिया है, मकान लिया है, तब कहीं वायरिंग है, एक बार वायरिंग को टेस्ट कराना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है. आरसीबीओ, एमसीबी. अब देखिए साहब, मैंने आपको बताया सिर्फ शॉर्ट सर्किटिंग और ओवरलोडिंग का, मैंने अर्थ फॉल्ट का नहीं बताया आपको. तो ये एमसीबी जो मैंने बताई थी आपको, शॉर्ट सर्किट ओवरलोड की बताई थी, जो हमारे घर में लगी है. इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट एमसीबी डू नॉट प्रोटेक्ट ह्यूमन अगेंस्ट इलेक्ट्रिकल शॉक caused by अर्थ लीकेज. दिस सर्विस इज प्रोवाइडेड बाय RCDs, दैट इज रेजिडुअल डिवाइस, दैट इज RCBOs. ये the RCBO is a current sensing component that can automatically disconnect and measure the circuit whenever the circuit exceeds the rated sensitivity or a fault happens in a connected circuit. This device is proposed to protect one from the risk of electrical shock. तो ये दोनों का combination होता है. कैसे होता है बताता हूँ. A residual current device or residual current circuit breaker is a device that instantly breaks an electrical circuit to prevent serious harm from or ongoing electrical shock. Or RCBO, residual current circuit breaker with overcurrent protection devices, are a combination of RCD, that is residual current, and MCB in one. And RCD detects earth leakage, short circuit, earth fault होता है, and current flowing where it should not be. मतलब जिस एरिया में करंट नहीं जाना चाहिए, अगर वहां करंट जाता है तो ये आरसीडी उसको डिटेक्ट कर लेती है. स्विचिंग द सर्किट ऑफ, सर्किट को ऑफ कर देती है वेयर देयर इज एन अनफॉल्ट करंट, एंड एमसीबी डिटेक्ट्स ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट इन वायरिंग सिस्टम. दोनों काम हो जाते हैं हमारे, ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट एंड अनफॉल्ट. इसलिए आरसीबीओ उसको बोलते हैं. बट ये इस तरह का होता है. Hence, in house wiring, combination of RCD, MCB is installed, which is called RCBO. But generally, it is called MCB. हम लोग उसको MCB बोलते हैं हमेशा.
RCV are commonly used in application where there is the need to combine protection against overcurrent, overload and short circuit, and protection against the earth leakage current. RCVO help in sensing this kind of fault and tip the circuit, ensuring complete protection of the pebble and connected equipments. This ये combination होता है. So having said that, this is my domestic, but give me 5-7 minutes so that I want to tell you about earthing fault. देखिए साहब, the importance of earthing is being discussed here. You must know that why on transmission towers one earth wire is being taken for lightning surge to be stopped. It is stop the surge. A transmission or power arterial electric pylon or variation is a tall structure, usually steel lattice tower used to support an overhead power line. Why we provide earth terminal in our 3-pin sockets? क्या जरूरत है? क्यों एक एक्स्ट्रा वायर ले रहे हैं हम? क्या जरूरत है? जरूरत है सर, there must be some reason. What is the reason that all our domestic electric gadgets like fridge, mixer, washing machine, microwave, etc. need earthing connection? Therefore, we need an earth connection for all our electric gadgets. But what the earth connection does for us? While connecting our electrical equipment with supply mains in 3-pin single phase supply, one is phase wire or live wire or port wire. Second, one neutral wire or return path wire, and third is earthing wire, ground wire. बहुत जरूरी है जानना हम लोगों के लिए जो घर में कम रहते हैं, ऑफिस में ज्यादा रहते हैं, बाहर रहते हैं और घर में हमारी फैमिली रहती है, जिनके लिए हम ब्रेड एंड बटर कमा रहे हैं सर, उनको इसके बारे में थोरो नॉलेज होनी चाहिए और आपको उनको गाइड करना है. देखिए साहब, कलर कोड ऑफ वायर इन इंडस्ट्रीज as figure shown opposite, the color of the phase wire is red with a brownish shade. The color of neutral wire is blue. And the color of earth wire is yellow, probably green or just green. ये industries में होता है सर. But we are talking about the house. But in the domestic gadget, earth wire is always green. Always green. Always green. Earth wire green ही होगा सर. The phase and neutral wires are red and green respectively. और जो फ्यूज लगता है, ensure that fuse of correct value is provided. अगर फ्यूज यूज किया है साहब तो अगर 5 एम्पियर का है तो 5 एम्पियर का ही होना चाहिए, अदरवाइज एमसीबी यूज करिए. Purpose of earthing, the main purpose of earthing electric equipment is to protect human life from electrical appliances carrying heavy current. This may happen due to accidental snapping of phase wire with the body of the electrical equipment. अगर इक्विपमेंट का स्नैप कर गया फेज वायर तो आपको शॉक लगेगा, अगर अर्थिंग नहीं है तो सिस्टम में. Normally copper wire or stick is used as earthing conductor, but now it is replaced by galvanized iron. However, copper earthing pits are fairly visible near railway tracks. Benefit of galvanized iron is it does not catch corrosion and cheap also. Sometimes aluminum conductor is also used because first copper is costly and is also stolen by anti-social elements. इसलिए वो इस तरह का एल्यूमिनियम यूज करते हैं. ये देखिए साहब, let us discuss the electricity is the electricity is the product of current, voltage, resistance. ये मैंने एक एग्जांपल लिया साहब, as per Ohm's law आया, ये मैंने बताया था आपको, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि शॉक कैसे लगता है हमको घर में. Now experimentally it is estimated that the current of this 0 to 9 milliamps generated by 20 volt does not give sensation in human body. But if the current range is 20 milliamps, then it is painful and the victim can't release his grip, inability to let go. मैंने बताया आपको. If further it is into 50 milliamps, then it leads to anticular fibrillation and heart conversion and usually fatal. Muscular contraction. Here it is interesting to note that a current which flows from a 100-watt bulb can electrocute 20%. Therefore, 1 ampere current is most dangerous for human body. When electrical equipment is not connected to earth, देखिए सब क्या होता है,
दिस सिंगल फेज सर्क्यूट, इलेक्ट्रिकल सर्क्यूट, ये एक सर्क्यूट है साहब, ये इलेक्ट्रिकल, हमारे घर में है ये सर्क्यूट, और ये फ्रिज है, ये फ्रिज है। दिस सिंगल फेज, अर्थ की इंपोर्टेंस बता रहा हूं सिर्फ आपको 4 स्लाइड्स में। दिस सिंगल फेज इलेक्ट्रिकल सर्क्यूट, वन इज फेज एंड द अदर इज न्यूट्रल। ये फेज है, ये न्यूट्रल है, और ये अर्थिंग है। सप्लाई में आ रहा है अर्थिंग, फेज न्यूट्रल आ रहा है, वोल्टेज 220 वोल्ट है, 5 एम्पियर का फ्यूज लगा हुआ है, वोल्टेज 220 है, और फ्रिज की रेजिस्टेंस जो है 60 ओम्स, फ्रिज का रेजिस्टेंस, क्योंकि वो भी कंडक्टर है तो रेजिस्टेंस उसमें भी होगा। द फेज वायर ऑफ सप्लाई स्नैप्ड एंड टच द मेटेलिक पार्ट ऑफ द इक्विपमेंट। अब हुआ क्या साहब कि मेरे घर के अंदर फ्रिज चल रहा है, और चलते चलते फ्रिज का जो फेज वायर था वो स्नैप करके और बॉडी से टच कर गया, बॉडी से टच कर गया। लेकिन मेरा फ्रिज अर्थ नहीं है, मैंने जो सप्लाई ली है उसमें अर्थ वायर नहीं लिया, फिर फेज न्यूट्रल से चल रहा है वो। अब क्या होता है साहब, द इक्विपमेंट इज नॉट अर्थ। अब ये करंट फ्लो तो ये है, लेकिन क्योंकि अब क्या हुआ साहब कि एक आदमी ने इसको टच कर लिया, नाउ a man has touched the equipment accidentally, as equipment is not earth, so the fault current will flow from hand to foot। ये जाएगा, here voltage is 240 volt, resistance is hand to foot is 1000, resistance from hand to foot, that is rupee r resistance 1000, ये। So as per Ohm's law, V is equal to IR और I is equal to VR। So क्या हुआ साहब, ये फ्लो ऑफ करंट ये हुआ, I is equal to 240, 1000.240 amps, that is 240 into 100, तो 240 मिली एम्प्स करंट उसकी बॉडी के अंदर से फ्लो हुआ जिसने उसको टच किया। बट अबव 5 milliamps current gives shock and at 50 milliamps when get electrocuted। 5 milliamps तक तो सेंसेशन रहती है, लेकिन 50 milliamps में तो आदमी फेटल हो जाता है ना, और उसको 240 milliamps मिल रहा है साहब, वो तो मरेगा ही मरेगा। So in this case man will get fatal injury। Secondly, our fuse breaker, ये जो मेरा फ्यूज है साहब, बट 5 एम्पियर का है, लेकिन फॉल्ट करंट तो 240 milliamps ही है, तो ये थोड़ा उड़ेगा, फ्यूज क्यों उड़ेगा? सो फ्यूज विल नॉट ब्लो एंड करंट विल कंटिन्यू फ्लो थ्रू द विक्टिम्स बॉडी और फेटल हो जाएगा, क्योंकि मैंने मेरे फ्रिज को अर्थ नहीं किया। Hence ultimate result is fatal accident। Now the same circuit, same voltage and same fault हम ले लेते हैं साहब, almost everything is same, but now my fridge is connected with the ground और ग्राउंड रेजिस्टेंस मेरा 10 ओम से सर। Let us assume that the gauge is same, so current will flow via earth now because it is there, so the body resistance is 1000 whereas equipment resistance 10 ohms, so it will flow through equipment earth wire। क्यों होगा ऐसा? क्यों? क्योंकि ये 1000 वोल्ट दे रहा है और ये 10 वोल्ट दे रहा है, तो जहां रेजिस्टेंस कम होगा तो वहीं से तो करंट पास होगा ना। करंट हमेशा लीस्ट रेजिस्टेंस पार्ट ढूंढता है साहब, लीस्ट रेजिस्टेंस। सेकंड, the voltage is 240 volt but R is 10 ohms, path of leakage current this, I will report 241 then 24, so fault current is 24 amps, but the rating of our fuse is 5 amps, so fuse will blow up। जब मेरा 24 amps करंट लीकेज करंट निकल रहा है तो वो तो 5 एम्पियर का ही है, तो उड़ेगा।
Therefore, earthing must be provided with every electrical machines in our house. ये मैं जान करके आप लोगों को बताना चाहता था कि कोई भी मशीन, चाहे आपका फ्रिज हो, चाहे आपका मिक्सर हो, आपका टोस्टर हो, माइक्रोवेव ओवन हो, लेकिन इसके साथ एक चीज और सर, आपकी बिल्डिंग में आपके फ्लैट के अंदर आ भी रहा है कि नहीं आ रहा, that also get tested, sir. Having said that, perhaps I have taken too much time. It is only not mandatory, but keep the life safe of users. So, thank you very much for listening. If there is any question, I can reply, though I have taken 5 minutes more than the required time. Sorry for that. मोदी जी. जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है. आपने हाँ बोलिए. बोलिए बोलिए बीना जी बोलिए. मेरा जो क्वेश्चन था उनका आधा आंसर वो मुझे दे दीजिए. आपकी आवाज जरा जोर से बोलिए साहब. क्वेश्चन आउट ऑफ व्हिच यू हैव आंसर्ड. नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा है. आवाज नहीं आ रहा है. हेलो. अच्छा, नहीं आ रहा है. सर का प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा था, स्लाइड्स और एक्सप्लेनेशन इज वेरी नाइस. तो कोई क्वेश्चंस ही नहीं है. सर ये प्रेजेंटेशन हमारे सर के पास दीजिए, फिर हम लोग वो फॉलो करेंगे. श्योर सर, willingly I will be very much happy. और अगर कोई क्वेश्चन है तो मोदी साहब को बोल दीजिएगा, या मेरा मतलब ईमेल एड्रेस ले लीजिएगा, मुझे फोन करके पूछ लीजिएगा, सब मोदी साहब के पास है. ही इज माय एनसाइक्लोपीडिया, तो बता देंगे आपको सब. थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच. राइट. मेहता जी, मेरा एक डाउट है. हाँ ये जो आपने बताया अर्थिंग नहीं है इक्विपमेंट का, हाँ. तो उससे जो है ठीक है, ह्यूमन बॉडी टच करेगा तो उसको फैटल हो जाएगा. हाँ. कैन इट ऑल्सो डैमेज द इक्विपमेंट ऑल्सो? इक्विपमेंट को डैमेज नहीं करेगा ना. इक्विपमेंट को क्यों डैमेज करेगा? इक्विपमेंट को तो सप्लाई चाहिए ना चलने के लिए. तो उसको फेस मिल रहा है, अर्थ मिल रहा है. अर्थ इज ओनली फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग. मेहता साहब एक क्वेश्चन था, मेरा एक क्वेश्चन था मेहता साहब. हाँ बोलिए सर. हमारे बचपन में हमारे माने गांव में बताया करते थे, भाई आप कोई भी चीज पकड़ोगे तो आप चप्पल पकड़ के चलिए तो उसमें आपको रिस्क कम है. उसका कोई लॉजिक है? सर लॉजिक क्या है ना, चप्पल का मतलब अगर रबड़ की चप्पल है, हाँ जी, लेदर नहीं, लेदर इन द सेंस कि नीचे लोहे का कुछ नहीं होना चाहिए, तो वो क्या सर्किट नहीं कंप्लीट होगा ना. रबड़ इज ए बैड कंडक्टर ऑफ करंट, सो वो सर्किट कंप्लीट नहीं करेगा. अगर बाई द वे आपको शॉक भी लग गया तो वो सर्किट कंप्लीट नहीं करेगा ना. सो यू विल हमारे शॉक. हाँ, तो हमारे जो हवाई चप्पल है वो तो सेफ है ना तब? डेफिनेटली सेफ है सर, बट मैं एडवाइस नहीं करूंगा. अगर आप गीले में खड़े हैं तो यू हैव टू टेक लॉट ऑफ प्रिकॉशन सर. सब मैं आपको 4 बातें बताता हूँ, 4 से 5 की जरूरत नहीं सब घर में. पहला एक अर्थिंग घर में आ भी रहा कि नहीं आ रहा. सेकेंडली और एमसीबी जिसको मैंने आरसीबीओ बोला है, वो टेस्टेड है कि नहीं है. आपके सारे इक्विपमेंट्स 3 फेज होने चाहिए, 3 पिन टॉप से कनेक्टेड होने चाहिए, ग्राउंडिंग से कनेक्टेड होने चाहिए, और आपकी वायरिंग को एटलीस्ट वंस इन ए ईयर प्लीज गेट टेस्टेड विद रजिस्टर्ड रिकॉग्नाइज्ड इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर इलेक्ट्रिशियन. सर एक क्वेश्चन था मेरा जी. कैन आई आस्क? Oh, sure, sir. Sure. You're most welcome. Yeah. Actually, you told about testing these MCBs and all. Normally, we install, but we don't get any scope for testing. वही. So, how do we test those things? देखिए सर, एक तो उसमें ट्रिपिंग स्विच होता है, उसके अंदर एक ट्रिपिंग स्विच होता है सर. हाँ. आप उसको दबाइए, Okay. वो ट्रिप कर जाएगा. अच्छा, you mean there is a testing switch there? या होगा. एमसीबी के अंदर ट्रिपिंग स्विच होना चाहिए. Okay. उसको आप दबाइए, प्रेस कीजिए, ट्रिप कर जाएगा आपका सर्किट.
Okay, okay. Then you have to wait, sir. You have to wait. Immediately on नहीं होगा, क्योंकि वो जो Okay. बायोमैग्नेटिक स्ट्रिप अंदर वाली है वो हीटअप होती Mhm. है, तो वो जब तक नॉर्मली क्लोज नहीं होगी Okay. तो आपको दोबारा ऑन करेंगे तो ऑन नहीं होगा। तो आप कहेंगे वो कौन सा आदमी आया था यार, एक 75-year-old यंग मैन जो बता गया कि इसे ट्रिप करके देख लो, उसको आपको वेट करना पड़ेगा 5 मिनट। Okay, so there is a procedure to test it. Yes, yes, there is. There is a procedure. There is a other एक और चीज बता दूं आपको, हालांकि वो बड़ा थंब रूल मेथड है, रॉ मेथड है। आप एक टेस्ट लैंप लीजिए, टेस्ट लैंप लेकर के और आप फेस और न्यूट्रल में लगाइए सॉकेट के अंदर, बल्ब जलेगा। फिर उसके बाद फेस और अर्थ में लगाइए, बल्ब जलना चाहिए। इसका मतलब आपका अर्थ भी आ रहा है, लेकिन ये एक अपने को सेटिस्फेक्शन देने का है। Okay, that means the earth is connected properly. Earth is connected properly. Right. Yeah. And secondly, सब क्या है कि जब हमारी शादी हुई थी, सॉरी मतलब मैं थोड़ा सा आई एम टेकिंग प्रिविलेज फॉर दैट, कि हमारे पास एक फ्रिज था, पत्नी ने कहा एक फ्रिज ले लो, ले लिया। उसके बाद उसने बोला माइक्रोवेव भी लो, मुझको चाहिए। फिर उसके बाद उसने बोला मिक्सर भी लो, टोस्टर भी लो। तो धीरे धीरे हमारा लोड बढ़ता गया, लेकिन हमारी वायरिंग वही है। राइट, ठीक है ना। तो हमको एक बार वायरिंग भी मेगर करवानी चाहिए। मेगर एक मीटर आता है, इलेक्ट्रिशियन आता है, चेक करता है ये मेगा होम में है कि नहीं है, मतलब वायरिंग हेल्दी है कि नहीं है हमारी। दैट्स ऑल। ओके, एंड ये जो आप सर्टिफाइड इलेक्ट्रिशियन बोल रहे हैं, मतलब नॉर्मली वी कॉल पीपल इलेक्ट्रिशियन वे कॉल, बट सर्टिफाइड इलेक्ट्रिशियन मतलब नॉर्मली हाउ टू गेट दोस पीपल? सब इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर्स तो होते हैं ना सब। हाँ, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर रजिस्टर होता है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंदर। ओके, तो वी शुड चेक दैट वेदर दे आर रजिस्टर्ड। हाँ, दे आर रजिस्टर्ड नॉट। नहीं उज्जवल मेहता जी, एक्चुअली ये जो इलेक्ट्रिशियन आते हैं, बहुत से इलेक्ट्रिशियन जो हैं वो सर्टिफिकेट लिए हुए होते हैं कि दे आर सर्टिफाइड। हाँ होंगे ना साहब, होंगे। हाँ, करता है नहीं होते हैं मत दीजिए, है साहब, कुछ नहीं होते हैं। नहीं, दैट इज अ वेरी वैलिड पॉइंट, मीन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सब चक्कर क्या है साहब, सबसे बड़ी बात तो साहब, हम जब काम पे जाते हैं घर में कौन रहता है? करेक्ट। तो उनको तो सेफ रखना हमारी ड्यूटी है ना सर। Yes, we should put all our effort to do that. बिल्कुल साहब, बिल्कुल। और बच्चे, सर मैं 2 मिनट और लेऊंगा मोदी जी आपके। मेरे से नहीं, सेन गुप्ता जी से। हाँ, सेन गुप्ता जी से ले लेता हूँ मैं 2 मिनट। सब मैं जब बीआरसी के अंदर था तो हमको मतलब सीनियर ऑफिसर्स को गाड़ी लेने आती थी। एक मिस्टर चोपड़ा थे साहब, वो बिना जूस पिए उतर ही नहीं सकते थे। तो उस दिन जब उनकी वाइफ जूस बनाने के लिए प्लग लगा रही थी तो गिर गया, प्लग टूट गया। तो उन्होंने क्या किया कि उनको मालूम था हरा वायर कहाँ लगेगा, लाल कहाँ लगेगा, काला कहाँ लगेगा। उन्होंने लगा करके और मिक्सी चालू करके पी के चले गए साहब। लेकिन उनका बच्चा देख रहा था मेरा पिताजी क्या कर रहे हैं। अब वो तो चले गए ऑफिस, माता जी चली गई नहाने, और वो बच्चा क्या कर रहा है, वो तार लगा रहा है उसमें। तो फॉर्चुनेटली क्या हुआ कि उनकी जो मिसेस चोपड़ा थी वो कोई चीज भूल गई थी, तो लेने के लिए आई, तब उन्होंने देखा। सो ऐसा भी नहीं होना चाहिए क्या, क्योंकि बच्चे क्या है साहब, उनकी ग्रेस्पिंग पावर बहुत तगड़ी होती है साहब, बहुत तगड़ी होती है साहब। हमारी अंडरस्टैंडिंग पावर ज्यादा होती है, उनकी ग्रेस्पिंग पावर तगड़ी होती है। सो नेवर इग्नोर दैट। अगर ऐसा हो भी जाए तो उस गजट को उठा के बंद करके जाओ लॉक के अंदर। Thanks a lot, sir. Thank you, sir. Sir, one question, sir. Yes, sir. देखिए, if everywhere we have to use only 3-pin top and 3-pin plug, Yes, then why these 2-pin gadgets are sold? Is it not against the rules? No, sir. They are designed like that. Their earth is not needed. That is high density plastic is being used in that. So even if something happens inside, it is not reflected outside. अगर आपको branded with best of the company 2-pin वाला मिला है, then it is designed like that. उसमें आपको जरूर नहीं उसमें तीसरा पॉइंट होना, वो डिजाइन ही ऐसा ही है। क्योंकि उसमें हाई डेंसिटी प्लास्टिक यूज किया गया है कि अगर अंदर वायर स्नैप भी होगा तो यू विल नॉट गेट शॉक।
Yes. ठीक है, थैंक यू। सर Thank जब you. Thank सर you. जब हम मोबाइल चार्ज करते हैं जी। वो बहुत गर्म हो जाता है, तो वो हाँ। यूज करना नहीं चाहिए। मोबाइल मोबाइल का जब हम चार्ज करते हैं यूएसबी, मोबाइल हम का जब वोल्ट होता चार्जर है में ना? डालते हैं, हम्म, वो यूएसबी पोर्ट में वो डालते हैं, तो हम्म, बहुत गर्म हो जाता है बाहर का इंस्ट्रूमेंट। तो क्या करना चाहिए, वो क्यों ऐसे इतना नहीं गर्म वो हो तो होगा जाती है गर्म फिर? होगा गर्म होगा। तो देन वी शुड नॉट यूज इट, वी आप शुड 6 वोल्ट आपका जो मोबाइल है वो 6 वोल्ट लेता है और 220 वोल्ट ये जो आपका वो आ रहा है सप्लाई, वो उसके अंदर उसको स्टेप डाउन करके देता है आपको सप्लाई। तो वो तो चार्ज कर रहा है ना, तो वो तो अंदर के एलिमेंट्स को सारा वो गर्म करेगा। वो डिजाइन्ड है लाइक दैट, नो नीड टू वरी। Voltage level is less there, I think. That's right. 6 वोल्ट। Yeah, 6 volts. So it is not harmful, means. No, not harmful. Only thing, don't use your telephone when you are charging. Petrol pump under high tension lines. So I think Mehta sir, we had a fascinating session. Thanks a lot. I think It's my pleasure, sir. it was an excellent session. And Thank as you. Chandrakant Rane sir rightly told that probably the questions are less because the session was completely fulfilling. Thank you. Thanks a lot, sir. Modi Thank you, sir, sir. many thanks to you for referring Thank Mr. Mehta. you. Mr. Mehta, we look Thank- forward to your support in other programs also. Thank you very Sure, much. sir. Sure, sir. Very Whenever you nice. need, I Thank am you, there sir. to help you. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. थैंक यू, sir. Thank you very much, sir. Thank you, Thanks sir. a lot.